Warm good afternoon to all the attendees present over here. Myself, Ayushi. I welcome you all in the event Vedic 1.0 conducted by Kamna, the Voice of Justice. Thanks for taking time to join us today. We will let you know about the law entrances at the prominent universities of India. We have got a free surprise for you all at the end of the session. So stay tuned to know more about it. Feel free to post your queries in the chat box. Moderator Aryan Malik would collect the most upvoted question and will be answered by our chief speaker. Either you run the day or the day runs you. It's all up to you. Great things happen with enthusiasm. So be curious through the whole session. And at last, I would like to promise you that at the end of the session, you would feel worth joining it. Now, I would like to hand over my mic to Lavisha. So, hello everyone. My name is Lavisha Bageja and I'm working at Kamna Voice of Justice. So, what's Kamna? Kamna is an Indian based group of people, communities working towards animal welfare, I must say. It laid down the foundation of the project to spread about the legal awareness about the cruelty faced by animals, because animals in particular, because being a stray in India is nothing less than a war zone. Kamna majorly claims to create a team of like-minded individuals and put an end to the exploitation against the animals. We aim to host not only like fight with the culprits and cruelty, but also to provide a safe and secure environment to all of us, to the humanity at large. However, law is in every field and it's very essential to know its path. So attend this webinar in order to excel in knowing the path, because path is very essential in acquiring the desired goals. You want to be a lawyer in some time or the other, this is the webinar you must attend right now. With that being said, a last word of thanks to me for attending this webinar and holding up the mic to the fellow interns. Good afternoon, everyone. I am Ananya Singh. We all are gathered here for the event Vedic 1.0. The purpose behind this is webinar is to provide you is to help you guide for the law entrance exam. Whenever we thought to clear an entrance exam, the first thought that comes to our mind is what are the subjects we have to study, what are the important topics, and for all your confusion, all your doubt, there is one solution, and that is this webinar, which is organized by Kamna, Voice of the Law courses like Maharashtra University, Punjab University, Banaras Hindi University, and NLU Bangalore, which provide 3-year law course. Mr. Aman Jwala has a varying degree of practical experience as an intern, including working under the Additional Advocate Generals of Tamil Nadu, Punjab, and Haryana, Vice President of Supreme Court of India, President of International Council of Jurists, and various criminal lawyers. He also has experience in training students for law entrance. As a remarkable gesture, he offered free classes to a number of students in preparation for their law entrance exams in 2020. Under his personal supervision, significant number of students gained admission to several esteemed law institutions of the country. Now, I invite Mr. Aman Jwala to take the stage. Good afternoon, everyone. I hope I'm audible to all. Everyone is clearly जो मुझे आप लोग सब सुन सकते हैं. ऐसा Yes, किसी sir. को भी there is any problem, any issue, there is an echo. I hope there is a no echo. Okay. Thank you so much, everyone, and I really thankful to all and welcome to all. In the today's session, I will teach you, I will guide you, I will you mentor you, I will describe you my experience. Even after me, there are the some members, interns, and there are the law students of the very other university will share the experience. I will teach you the different syllabus, how the other university different from other university. Second thing is this webinar is purely conducted by Kamna. We have no link with another organization or any union or something. It's totally today's session is totally free. We never charge anything from anyone for the any webinar. Second thing, this webinar is based on 3-year LLB entrance exam only, not for 5 years. But I will try to differentiate between the what is the 5-year benefit, what are the 3-year benefits. Okay, okay. So I hope I'm going to start from the beginning. I'm showing to my the. Please focus on my screen. I'm turning off my camera. Please focus on my the screen. To the today webinar, why we conduct it and what are the difference between. So
just I'm coming down the. First of all, the event name is Vedic 1.0, and about the in this session, what I will cover, what is the law college is best for you. Second thing, strategy for the law entrance exam, aspirant requirement, sources, law entrance exams, types of mocks, which mock you should to buy. Okay. So coming to the, what are the basic difference between the 5-year and the 3-year? 5-year program is provided by National Law University, and National Law University providing like CLAT IELTS exam, जिसमें आपका 5 ईयर का प्रोग्राम होता है इजीली, जिसके अंदर आपका इंटीग्रेटेड रहेगा। इंटीग्रेटेड मतलब जैसे कि आप लोग अगर अपना 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप उसके अंदर आपका बीए बीकॉम सब्जेक्ट आपका उसमें इंक्लूड होता है, वो होता है 5 ईयर। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर? 3 ईयर में पहले आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद अपने 3 साल और लगाएंगे, तो अल्टीमेटली विच कम्स अंडर वो 6 साल का पड़ता है। इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर राइट नाउ, तो मैं आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग क्या करिए, अपना सबसे पहले नेक्स्ट ईयर जो 2020 वाला आपका एग्जाम है क्लैट का, वो आप मिस मत करिए, क्योंकि आप अपना ऑलरेडी 1 साल लगा चुके हैं। तो उसके बाद हो सकता है कि अगर आप 2020 का क्लैट एग्जाम क्लियर करते हैं तो अल्टीमेटली आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और 3 साल बाद आपका प्लान चेंज हो जाए और लॉ की जगह आपका कुछ कहीं और प्लान बन जाए और आपका भी प्लान जो है लॉ वाला वो चेंज ना हो, यू कैन चूज द ऑप्शन फॉर 2022 क्लैट और द आईलेट एग्जाम। 3-ईयर एलएलबी के एग्जाम की मैं बात करूं, 3-ईयर एलएलबी आपका थोड़ा सा फास्ट कोर्स रहता है, जहां पर आपको ऑलरेडी आपको कुछ इंटीग्रेटेड नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब कि आपको बीए बीकॉम से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे कि 5 ईयर में क्या होता है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां पर क्या होगा, आपको जैसे इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और बीकॉम के सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, या बिजनेस स्टडीज हो गया, फिर साथ में एक लॉ का एग्जाम्स होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा उसमें, या कोई अदर एक सब्जेक्ट होगा। लेकिन 3 ईयर में क्या होता है, सुनो मेरी बात, 3 ईयर की अगर मैं बात करूं, तो 3 ईयर में सीधा सीधा क्या होगा, आपको डायरेक्टली लॉ पढ़ाया जाएगा। 3 ईयर में आपको सीधा सीधा लॉ पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आपको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, टॉर्ट्स होगा। हाँ प्लीज, जिसका भी नेम आप डायरेक्टली आपका यूजर नेम आप ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि आपका यूजर नेम है डोंट गेस समथिंग, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई स्क्रीन शेयर ना करे अगर आप अनऑथोराइज्ड है और मेरे पास नहीं है लिंक, तो वी कैन टेक या लीगल एक्शन अगेंस्ट। ओके, नाउ कमिंग टू दी टुडे सेशन। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टी है, टॉर्ट्स है, एंड दी लॉ सब्जेक्ट्स आपको डायरेक्टली पढ़ाए जाएंगे, लेकिन 5 ईयर में आपको इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाए। डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन 3 ईयर वाले का 3 ईयर है, 5 ईयर का 5 ईयर है। सबसे पहले तो जो ड्यूरेशन है, मेन छोटा सा ड्यूरेशन है, और 3 ईयर आपके लिए कैसे बेनिफिट है। इफ अगर आपको लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, अभी आप बीकॉम में इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि मुझे लॉ करना ही नहीं है, तो आप 3 ईयर पहले चूज करिए, बीकॉम करिए अगर आपको मैनेजमेंट करता है, और आपका अगर फ्यूचर में कोई प्लान चेंज होता है, उसमें आप 5 ईयर 3 ईयर वाले को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 ईयर अभी चूज करते हैं और आगे जो आपको जर्नी आपकी लॉ के साथ कॉम्पीट नहीं करनी, या आप कंफर्टेबल नहीं है उसको ज्यादा यूज करने के लिए, तो आप 3 ईयर वाला ऑप्शन चूज करें, वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन। बेसिक डिफरेंस, आईलेट, इसका आईलेट्स होता है, क्लैट होता है 5 ईयर में, 3 ईयर में ड्यूएलएलबी है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एनएलयू बैंगलोर, जो 2020 में फर्स्ट टाइम अपना पहली बार जिसने अपना एक 3 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। नेक टू नेक कंपटीशन रहने वाला है इसमें, नंबर ऑफ सीट इज 60 है। नेक टू नेक कंपटीशन है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको मैं आगे डील आपसे करूंगा। अब काफी लोग सोचते हैं कि अगर मैं सेकेंड ईयर में हूं तो क्या मैं 5 ईयर की तरफ जाऊं। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी, वो आपका फिर 7 ईयर वाला प्रोग्राम हो जाएगा, तो आप तब फिर आप 3 ईयर वाले में जाए। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में है तो आप 5 ईयर वाले की तरफ भी देख सकते हैं, और 3 ईयर वाला तो आपके लिए फ्यूचर में ऑप्शन है ही। अब लो एंट्रेंस एग्जाम्स जो 3 ईयर में जो टॉप प्रायोरिटी में मेरे रहते हैं और सबकी प्रायोरिटी पे रहते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है जो 3 ईयर के लिए अगर कोई भी, अगर जो भी एस्पिरेंट है जो एग्जाम देना चाहता है, वो इन प्रायोरिटीज को जरूर जरूर अपने पास रखेगा। ठीक है, टॉप 5 जो है
आप टॉप 5 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखो ये ऑल ओवर इंडिया पे कंडक्ट होते हैं बेसिकली, इनका एक्सपोजर सबसे अच्छा है टॉप फैकल्टी का, इनका 5 का। दूसरी बात ये है कि इनका कैंपस का एनवायरनमेंट, एकेडमिक एनवायरनमेंट ये बेस्ट है, और इनके जो एलुमनाई हैं वो काफी अच्छे एलुमनाइज निकले हैं। और यहाँ अगर आप पढ़ते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम है वो आपको पीजी में मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में मिलेगा, अंडर ग्रेजुएशन वाली लिस्ट में नहीं मिलेगा। तो अगर आप खुद चेक कर रहे हैं तो आप पीजी वाले सेक्शन में जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे, तब आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ का मिलेगा। फैकल्टी ऑफ लॉ में 3 सेंटर है जिसका नाम है लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, कैंपस लॉ सेंटर 3। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना एग्जाम होता है जिसको एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी उसको कंडक्ट कराती है। एग्जाम की जो लेकिन मेन बॉडी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रहती है। एडमिशन का प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम, जो रिजल्ट रहा है 2 साल में, और जो इनका एडमिशन का प्रोसेस रहा है, डिले रहा है, स्लो रहा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सेकेंड इज दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदी नहीं है, हिंदू यूनिवर्सिटी है। इसका बीएचयू अपना एक एग्जाम कंडक्ट करता है। मुंबई यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जिसको एमएससीईटी से भी आप लोग जानते हैं। थर्ड वन इज दी पंजाब यूनिवर्सिटी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आपको कहीं कहीं 5 ईयर वाला प्रोग्राम मिलेगा, आपको कहीं कहीं 3 ईयर वाला मिलेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी वैसे दोनों प्रोवाइड करती है, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है ये 3 ईयर में है, और मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि आपको इन तीनों यूनिवर्सिटी को तो आपको टच करना ही करना है। एनी हाउ, अगर आपका इन 5 यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के बाद कहीं नहीं होता, इन पांचों में नहीं होता, तो आप उसके बाद भी मैंने ऑप्शंस ऐड किए हैं। तो एनएलयू बैंगलोर का जो एग्जाम है जो होने वाला है 2022 में, उसका एनएलयू सैट करके नेम है। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है। मैं आगे बढ़ूं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ मुझे वो बता सकते हैं चैट बॉक्स में। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? लविशा आगे चलूं मैं? Yes, sir, for sure. Like none of them have typed their confusions or any other doubts in the chat section. And every other participant, just one. Okay, so we have a question from someone who raised the hand. Yeah, if you have any query, just type it in the chat section, and the speaker would be addressing your query for sure in the end. So, ओके ओके, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। sure. दूसरी बात, इन 5 ईयर एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? मान लो आपके ग्रेजुएशन के अंदर 35% है, 35 पे तो आई थिंक पास भी नहीं होते होंगे, लेकिन आपके अगर मान लो 40% मार्क्स है ग्रेजुएशन मार्कशीट पे, या आपके मार्क्स है 50%, 20% नहीं हो सकता, वो तो फेल ही होगा, 55%। तो एलिजिबिलिटी क्या है? देखो, एलिजिबिलिटी है 3 ईयर एग्जाम में कहीं कहीं डिफरेंट है, सेम एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज का जो एलिजिबिलिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अब वो 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका 50 से अबव होना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 45 और एसटी इनके लिए थोड़ा सा कम है। तो मैं आपको बोल के चलूंगा कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में 55 के ऊपर आपके मार्क्स है, तो आप इजीली आपको कहीं भी, कोई भी, अगर आपके 55 60 है तो कहीं भी आपको एलिजिबिलिटी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी, या एलिजिबिलिटी का जो ग्राउंड होगा आपको, क्योंकि एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका फॉर्म, आप क्या करो, ग्रेजुएशन में आप इतने मार्क्स रखो, एटलीस्ट 60% आप रखिए, 60% आप रखिए, ताकि आप एलिजिबल हो कोई भी एग्जाम देने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से, एनी और किसी और कैटेगरी से, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, देयर आर द डिफरेंट थिंग, उनका थोड़ा सा रिलैक्सेशन। अबाउट द एंट्रेंस पैटर्न, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं वो वेरी करेगा एग्जाम टू एग्जाम, वो मैं डिटेल में आऊंगा कितने किस किस में क्वेश्चन है। सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ, प्लीज ये नोट करके चलेंगे। 60 to 65% of the syllabus, 60 to 65% of the syllabus remain same, मतलब कि सेम रहेगा। जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आएगा। अगर आप
लॉ ऑफ थॉट पढ़ रहे तो लॉ ऑफ थॉट में भी आपका आएगा, मतलब लॉ ऑफ थॉट आपको पंजाब यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DULLB सब जगह आपका लॉ ऑफ थॉट आएगा। तो 3 ईयर का जो LLB का एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको, अगर आप किसी भी एक एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आप ड्यू का एग्जाम छोड़ना मत, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो आपका 60% तो आएगा है। और मैं बताऊं आपको पासिंग मार्क्स जो किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए चाहिए विच इज 65 to 70% इजीली आपको एडमिशन के लिए। तो आप अपना एक चांस मिस करते हैं। हर बारी मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि प्लीज अगर आप ड्यू क्लियर कर रहे हैं तो BHU भी दे दो। नहीं नहीं सर मैं BHU नहीं दूंगा, रीजन इज कि मेरे को दूर नहीं जाना। और फिर जब एग्जाम कंडक्ट हो जाता है ड्यू में नहीं होता, बोलता है कि मैं ड्यू भी, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दे देता। तो बाद में क्यों ऐसा करना कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी का टाइम ही चले जाए। तो मेक श्योर जब 65% 60% अगर आपका सेम सिलेबस है तो आप इसके ऊपर रह रहे हैं। दूसरी बात, जो मोस्ट ऑफ द लॉ कॉलेजेस है उनकी एलिजिबिलिटी सेम है, मतलब 60% 65% और सिलेबस सेम है। आपके पास क्या क्या बेसिकली चीजें होने चाहिए सक्सेसफुली, आपका कोई भी बैक नहीं होना चाहिए। बैक मतलब कि आपकी कोई भी किसी भी एग्जाम में आप फेल नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, आप 3rd ईयर है, आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी कहीं ना कहीं आप किसी पेपर में फेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं शुरू करता हूँ आपकी सबसे ज्यादा लोगों को जो प्यार है मैंने देखा है 3 ईयर LLB में, विच इज द फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये दो मैंने पिक्चर्स लगाई है। जो पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं, पहली पिक्चर के अंदर है लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2, एक ही बिल्डिंग है, मतलब कि मॉर्निंग और इवनिंग का फर्क है। जो लॉ सेंटर 1 है वो नाम उसका लॉ सेंटर 1 है, लेकिन वो इवनिंग कॉलेज है जिसका टाइम है आपका 2-2:30 बजे से 7:30 बजे तक। 2 बजे या 2:30 बजे टाइमिंग है उसका, 7:30 बजे तक है। CLC जो है, CLC का जो टाइमिंग है आपका सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक। इसकी क्लासेस जो होती है गैप दे देगी, उसका टाइम थोड़ा सा लंबा है। दोनों सेंटर में कुछ भी फर्क नहीं है। डिफरेंस ये, तीनों सेंटर मतलब फैकल्टी ऑफ लॉ LC1 LC2 LC3 तीनों की जो कैटेगरी है आप बराबर रख सकते हैं, सेम फैकल्टी है। इवन टीचर्स भी एक्सचेंज होते रहते हैं, टीचर एक टीचर इधर से उधर भी जाता रहता है। एकेडमिक्स में तीनों सेम है, सोसाइटीज तीनों सेम है। तीनों कॉलेजेस में गैप, मतलब एक बिल्डिंग का गैप और CLC और LC2 में गैप इतना होगा, लगा लो मैक्स टू मैक्स 100 मीटर। अब और जो 100 मीटर का गैप है वो बीच के अंदर जो, उसमें आपके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जो लॉ सेंटर 1 का जो ऑफिस है वो CLC की बिल्डिंग में। तो आपका अगर आप एडमिशन आपका अगर CLC होता है तो आपका LC1 जाना रोज तय है। अगर आपका CLC में होता है और अगर आपका LC1 में होता है आपका CLC में जाना तय है। लेकिन जो लोगों को कंफ्यूजन है कि मैंने सुना है CLC इज द बेस्ट टेस्ट, CLC से इतने जजेस निकले हैं। देखो द रीजन इज CLC पुराना है, LC1 भी पुराना है, लेकिन CLC की जो बिल्डिंग है वो नॉर्थ कैंपस में पहले से थी। और LC1 की जो बिल्डिंग आई, LC2 की बिल्डिंग आई वो बाद में आई यहाँ पर नॉर्थ कैंपस। वो पहले साउथ कैंपस में थी या कहीं और थी, ठीक है, साउथ कैंपस में ही थी। अब तो CLC नॉर्थ कैंपस में पहले से था, ज्यादा जो भी अच्छे अच्छे लॉयर्स निकले पहले वो CLC से निकले, तो एलमनाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग CLC का हो गया था। लेकिन अब LC1 स्टैब्लिश और LC2 इतना स्टैब्लिश हुआ कि उसके एलमनाई और अब दोनों इक्वल वेटेज पे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है ना एलमनाई में ना स्टडीज में। अब मैं आपको बात करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर LC1 का बेस्ट है, LC2 का बेस्ट है। CLC के रूम्स छोटे हैं, पुराना स्ट्रक्चर है। LC1 और LC2 के जो इन्वायरमेंट है अब ज्यादा बेस्ट CLC से होने लग गया। दूसरी बात, अगर आप, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, अगर आप वेरी इंटरेस्टिंग इन दी पॉलिटिक्स यू शुड ज्वाइन एंड दी फर्स्ट प्रेफरेंस इज दी CLC, जो कि क्लियर है। CLC में अच्छी पॉलिटिक्स होती है, ये सब हम लोग मानते हैं। LC1 में पॉलिटिक्स नहीं होती। अगर आप पढ़ना ज्यादा अच्छे से चाहते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं, कोई आपका विजन नहीं है इन दी पॉलिटिकल सेशन, यू शुड चूज ज्वाइन दी LC1 एंड LC2 एकेडमिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं। कंफर्टेबल टाइमिंग है LC1 का, आप अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये सारी मैं आपके साथ नहीं करूंगा कब स्टैब्लिश हुआ था, वी विल शेयर विद यू दी PDF। फैकल्टी ऑफ लॉ के डायरेक्टली मैं आता हूं, जो कि OBC वगैरह की कैटेगरी। आप देखो सबसे बड़ा जो कैच है नंबर ऑफ सीट्स को लेके है। नंबर ऑफ सीट्स जो है, देखो जो नंबर ऑफ सीट्स है
फैकल्टी ऑफ लॉ की, वो 2700 से थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो सकती है। पहले यहाँ पर क्या था, 2020 में इसके ऊपर एक केसेस भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 5% आपको रिजर्वेशन मिल रहा था ईडब्ल्यूएस में, लेकिन 21 में इस ईयर 10% मिलने लग गया, पूरा मिलने लग गया। तो 2700 के आसपास ऊपर नीचे सीट है, 3000 के आसपास सीट नहीं, वो पुराना वाला चार्ट था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फैकल्टी ऑफ लॉ की सीट कुछ कम की थी, रीजन दिया था उसका। आपको अगर कहीं मिलता है 3000 के आसपास तो वो गलत है, 100% गलत है। सीट 2700 से 2800 के बीच में ही है। दूसरी बात, आपको जो हर जगह गलत मिलता है वो है फीस। फैकल्टी ऑफ लॉ की फीस 8000 रुपए आपकी फर्स्ट ईयर की के आसपास पड़ती है, उसके बाद आपकी 5000 6000 रुपए पड़ती है, जिसमें आपका केस मटेरियल आपको प्रिंटेड मिलता है। अगर केस मटेरियल नहीं मिलता प्रिंटेड ड्यू टू कोविड, क्योंकि कॉलेज बंद है, तब आपको क्या होता है, आपको 1000 रुपए केस मटेरियल के कम होकर आपको फीस भरनी होती है। अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका 30,000 रुपए मान लीजिए आपका सिर्फ फी का खर्चा है। हॉस्टल की फी अलग है, हॉस्टल का क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है अगर एडमिशन होता है तो ग्रेजुएशन मार्कशीट विद कॉलेज स्टैम्प। कॉलेज स्टैम्प का मतलब आप अगर आप पास हो गए तो आप कॉलेज में जाइए, अपनी स्टैंप लगवाइए, या उनको बोलिए डिजिटल स्टैंप वाली मार्कशीट भेजिए। 12th की मार्कशीट चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसके 6 महीने से पुराना आपका भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब चाहिए, जब आप डीयू से पास आउट है। अगर आप मान लो रामजस कॉलेज से पास आउट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन मान लो आप जामिया यूनिवर्सिटी से पास आउट है, बीएचयू से पास आउट है, तो आपकी फैकल्टी का मेन फैकल्टी आपका अलग है, इसलिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। मान लो आपने 2019 में आपकी ग्रेजुएशन की थी और 2022 वाला पेपर दे रहे हैं, तो कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस आपको दिखाना है कि आपने इतने साल क्या किया, कुछ भी नहीं है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो हर पेपर में आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, हर एडमिशन में आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे 3 ईयर एलएलबी में। सिलेबस में मैं आऊंगा, बस मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लूं फैकल्टीज के बारे में। द फैकल्टी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेरी वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटीज में एक रही है। रीजन इज कि यहाँ पर तो नंबर ऑफ सीट्स इज थी 230, भीड़ कम। दूसरी बात, आई विल टेक योर दी क्वेश्चन इन दी लास्ट सेक्शन प्लीज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, इसमें एक मैं आपको बोलूंगा कि लिमिटेड सीट्स है, 250 के आसपास सीट्स होगी, ज्यादा नहीं है, और भीड़ कम है, तो फोकस ज्यादा है स्टूडेंट के ऊपर, टीचर्स का। दूसरी बात, अच्छी यूनिवर्सिटी है, और अगर आप यहाँ से अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप देंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप सिर्फ जुडिशरी के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप मेरे हिसाब से तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अपना फर्स्ट ऑप्शन रख सकते हैं। कितनी फीस है, 250 के आसपास, 230 के आसपास सीट्स है। फी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज की मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, आपकी 30 मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगने वाला 3 साल का फीस में। हो सकता है किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है उसकी 20,000 फीस हो, लेकिन बहुत सस्ते में आप लोग इजीली आप अच्छी टॉप फैकल्टीज है जो इंडिया की, वहां से आप निकल जाएंगे करके। विच इज द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। ये 5 साल का और 3 साल का दोनों का कोर्स कराता है। ये इसकी जो सीट्स है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 3 इयर्स की है जो आपकी 16,000 के आसपास है, लेकिन इसके अलग अलग कॉलेजेस है और अलग अलग कॉलेजेस की अपनी अपनी रैंक है। जैसे कि कुछ टॉप 10 यूनिवर्सिटी, टॉप 10 कॉलेजेस है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, कोई टॉप 50 में होंगे। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा वो आपको तभी चेक करना है कि कौन सी आपका किस में एडमिशन हो रहा है, आपको लेना नहीं लेना। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पैटर्न सब कुछ सेम है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बात तो आपको एक्सपोजर अलग मिलेगा महाराष्ट्र साइड जाने का, जैसे कि अगर दिल्ली से अब महाराष्ट्र साइड जाने का आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने जितना देखा है, कॉर्पोरेट फील्ड के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपोजर दिख रहा है। कॉर्पोरेट फील्ड में ऐसा नहीं है कि लिटिगेशन नहीं निकल रहा, जुडिशरी नहीं निकल रही, लेकिन कॉर्पोरेट फील्ड आ जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। बीएचयू विच इज बेस्ट फॉर द जुडिशरी एंड द ड्यूएलएलबी फॉर द जुडिशरी एंड द कॉर्पोरेट एंड द ड्यूएलएलबी फॉर द हब फॉर द एवरीथिंग। नेता बनना है तो निकलिए फैकल्टी ऑफ लॉ से। अरुण अरुण जेटली जी पास आउट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। देयर आर सो मेनी
politician who cleared their the LLB degree from the faculty of law Delhi University. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिशियन और अच्छे-अच्छे जजेस और लिटिगेशन निकल रहे हैं, नहीं, और भी लोग अब बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए फी 8 रुपए फॉर्म की, 500 रुपए इसके लिए, ये सिंपल बेसिक है जो आप पढ़ सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी विच इज दी वन ऑफ दी माय फेवरेट एज कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद कुछ भी रखते हैं, मेरा मानना है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इक्वल फुटेज पे कुछ रखना चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी इज गुड ऑप्शन। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक एक्सपोजर अच्छा है, ठीक है, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, एक्सपोजर अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी अगर आप चेंज चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी, तो सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ, ओके। तो सिलेबस की बात करेंगे। इसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जो कि सबके लिए बहुत मेन है इस टाइम पे। नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सबसे पहले तो देखो, एक 3 ईयर प्रोग्राम इसका लेटेस्ट है। किसी के पास भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है इसका, कि कोई बोले इसका पेपर में कैसा सिलेबस आता है। सिलेबस इन लोगों ने मार्क किया है, दिया है, बेसिक सिलेबस दिया है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ये लोग क्या पूछेंगे एग्जैक्टली, बिल्कुल पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन सीट है 60, 6 सीट। और मैं ये बोलूंगा, अगर आप 5 ईयर का कर रहे हैं तो टॉप प्रायोरिटी आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होने वाली है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए हो सकता है, जो बच्चा सेकंड ईयर में है 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में, वो ये बैंगलोर वाला दे। आपको मैं बता दूं, आपके साथ हो सकता है यूपी एस्पिरेंट, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो भी 3 ईयर एलएलबी एग्जाम से थे। कितने ऐसे जो मेरी क्लास में थे और जितने को मैं जानता हूं, जिसमें से आज आईएएस ऑफिसर से। तो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में कंपटीशन होता है, क्योंकि मेरे जब मैं कॉलेज में था, जब भी मैं रहा हूं, तो मैंने देखा है कि जो कॉलेज के अंदर 40 एजेस वाले, 50 एजेस वाले भी होते हैं, क्योंकि बाउंडेशन नहीं है, कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। अगर आपकी एज 50 साल है, वो भी आपके साथ एंट्रेंस देगा। तो हाउ दी डिफरेंट, कैसे आप उसके साथ कॉम्पीट करोगे जिसको इतनी नॉलेज। पेपर का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है 3 ईयर एलएलबी का भी, तो आप वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसीजर इसका 3 स्टेज में रहेगा एनएलयू बैंगलोर का। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आपका सब्जेक्टिव होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में अगर आपके मार्क्स ठीक नहीं बनते, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है, तो आप सब्जेक्टिव के नहीं जा सकते, तभी तभी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे ही आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर करोगे, तब आप सब्जेक्टिव पे आ जाओ। सब्जेक्टिव क्या है? लिखने वाला। उसके बाद आपका 10 मार्क का इंटरव्यू है, ठीक है। 75 पार्ट वन मतलब ऑब्जेक्टिव 75 मार्क्स का है। पार्ट बी सब्जेक्टिव आपका 65 मार्क्स का है। 10 नंबर्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। 150 कुछ कम से कम ये इसका मार्क्स बनेगा आपका ज्यादा अच्छा। एनएलयू का फॉर्मेट, और एनएलयू में देखो इन्होंने बोला है लीगल एप्टीट्यूड, मतलब कि जैसे कि आपका कॉल सी, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें भी ये पूछेंगे, करंट अफेयर पूछेंगे, जीके पूछेंगे, ये वाली सारी ये चीजें पूछने वाले हैं। और डिटेल आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो मेक श्योर आप 4-5 वेबसाइट को चेक करके करेंगे, क्योंकि एक वेबसाइट पे कहीं भी करेक्ट नहीं लिखा हुआ। सिलेबस इंग्लिश है, करंट अफेयर है, क्रिटिकल रीजनिंग वही आपके लिए मिलेगा। एलिजिबिलिटी इसकी ग्रेजुएशन की मार्क्सिंग में होना चाहिए आपकी 45-50%। आप 50-60% से आप नीचे मत रखो अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपको कहीं भी क्लियर नहीं। सिंपल ही बात थी जो मैंने की है आपसे। अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे कि केरला लॉ यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑन द एंट्रेंस बेसिस। ये है, मैं आपको नेम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये चेक करेंगे। आपका मान लो इन टॉप 5 में से नहीं होता, तो आप इन यूनिवर्सिटीज पे रिलाय कर सकते हैं, और ये आपके लिए गुड ऑप्शन है। जैसे केरला यूनिवर्सिटी है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है, लोगों को पता ही नहीं है कि इन 5 यूनिवर्सिटी के अलावा आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है। आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उसमें क्रॉस चेक करेंगे। ओसामिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की है, जो ये भी अच्छी है, इसके अंदर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इनकी फी भी कम है, क्योंकि गवर्नमेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक आईआईटी खड़गपुर जो आईपीआर में कराता है। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो कराता है, वो लोगों को पता ही नहीं। अगर आप अपना फ्यूचर चाहते हैं आईपीआर में क्रिएट करना, तो मैं बोलूंगा आपकी आईआईटी जो खड़गपुर जो कराता है, उसमें आप लोग ऑप्शन चूज करिए 3 ईयर एलएलबी के लिए। भारतीय विद्यापीठ भी अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि गुड ऑप्शन है एंट्रेंस बेसिस। इसके बाद अगर मान लो आपका
सिम्बोसिस इज गुड, लेकिन सिम्बोसिस प्राइवेट में है। अगर मैं बात करूं 3 ईयर एलएलबी में एक गुड ऑप्शन विच इज सिम्बोसिस इज वेरी गुड। काफी लोग हैं जिनका कहीं नहीं होता, वो सिम्बोसिस जाते हैं, लॉयड जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शन है, इनकी एक्सपोजर अलग है, तो आप लोग ये चूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैंने ऑप्शन इसलिए रखे हैं कि आपने अपना टारगेट ऐसा रखना है कि ईयर वेस्ट नहीं करना, कि पता लग रहा है कि आपका ईयर वेस्ट हो रहा है, तो आपको ईयर वेस्ट नहीं करना। आप लॉ कहीं से भी करें, इक्वल वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है। इसके बाद मैं बात कर रहा था जो डायरेक्ट है, इसमें अगर कोई मेरे हिसाब से अगर इसमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि एक बारी अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको जो क्लियर है, जैसे एमईटी है डायरेक्ट एडमिशन है, लॉयड है डायरेक्ट एडमिशन, एसआरएम यूनिवर्सिटी अलग डायरेक्ट एडमिशन देती है, क्राइस्ट लॉ स्कूल है वो भी डायरेक्ट है, जिंदल लॉ स्कूल है जिसकी 18 लाख फीस है 3 साल की, ये वही लेगा जिसके पास एक सेटल्ड है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ अगर आप अपने 18 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब समझिए कि आपका कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा एक्सपोजर वो दे रही होंगे, तभी वो 18 लाख डिमांड करते हैं 3 साल की। मेरी जो फेवरेट रही है, अगर मैं कैटेगराइज कर दूं, सबको कैटेगराइज करके बोल दूं कि अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटी की मैं बात कर दूं, प्राइवेट गवर्नमेंट सबके अंदर है, फैकल्टी ऑफ लॉ टॉप पे नहीं है। ये देखो, ये जो मैंने डाला है टॉप पे नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखा है। तो फैकल्टी ऑफ लॉ जो भ्रम है तुम्हारा, फैकल्टी ऑफ लॉ इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है, पहली बात। फैकल्टी ऑफ लॉ टॉप 5 में गिन सकते हो, टॉप 10 में गिन सकते हो, लेकिन 2017 की बात है जब टॉप फैकल्टी ऑफ लॉ टॉप पे था, उसके बाद वो टॉप पे नहीं आया। ओपी जिंदल ग्लोबल स्कूल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि प्राइवेट है लेकिन अच्छा कॉलेज है, बीएचयू है, महर्षि है, लॉयड है। लॉयड इज वेरी गुड ऑप्शन जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है ड्यू के रैंक के बेसिस पे, डायरेक्ट एडमिशन का यहाँ पर प्रोविजन है। आईएलएस लॉ पुणे, इसका भी अच्छा एक्सपोजर है और अच्छा रहा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसका भी अच्छा एक्सपोजर है। इन लोगों का डायरेक्ट एडमिशन है 66,000 के अंदर आप लोग, पर इसका कुछ कॉलेज का बेसिक रूल है, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं छोटा सा, और आपके लिए एक अच्छी प्रोवाइड चीज करते हैं महर्षि दयानंद। इतना क्लियर। आई एम कमिंग टू दी टुडे मेन टॉपिक विच इज द सिलेबस ऑफ द 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। अभी तक सबको क्लियर? जिसको कोई कंफ्यूजन है, मैं आप फिर अपनी मेन स्क्रीन पे आता हूँ आपके क्वेश्चंस लेने के। Someone pursuing graduation from DU also there. हाँ, he can apply for any university. आपकी basic eligibility criteria is the graduation की marks. So can you brief the career option after the? I will take the another. क्या मिलेगा? पैटर्न जो है अब देखो, ये जो बेसिक सिलेबस है ना, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट्स को कहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कई लिस्टें हैं, कई पार्ट्स हैं। ये देखो, इसके अलावा भी मैं बताऊं, आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप और टॉपिक को कवर करें। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आज तक टीयू फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी पूछ सकता है। तो आप कहीं भी सिलेबस देखते हो तो वहां पर आपको दिखेगा कि 25 मार्क का कॉन्स्टी है, 25 मार्क का इंग्लिश है। ऐसा गलत है, ऐसा ये गलत है। उन वेबसाइट पे पुराना आज तक फैकल्टी ऑफ लॉ ने ऐसा पेपर नहीं दिया। फैकल्टी ऑफ लॉ ने कहीं भी पैटर्न फिक्स नहीं है कि 20 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इमरजेंसी के प्रोविजन है, रिट से पूछ सकता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पावर ऑफ गवर्नर, डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन प्रोसेस, टर्म ऑफ प्रेजेंट। टर्म ऑफ प्रेजेंट का 2019 में क्वेश्चन आया, पता है? और क्वेश्चन क्या था कि प्रेसिडेंट कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है, प्रेसिडेंट कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है, एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया है 2019 में। 2021 में क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गवर्नर। 2021 में क्वेश्चन आया है। अटॉर्नी जनरल से हमेशा क्वेश्चन आया है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर से क्वेश्चन आया है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से क्वेश्चन आता है। ये दीज आर दी बेसिक सिलेबस। यहां से अगर आप ये भी पढ़ जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे आपके। आप लोग एक बार खुद एक बार सिलेबस दे सकते हैं। Now coming to the law of contract. What is the law of contract? Basic, what is the how the contract is formed? Basic agreement, types of the agreement, types of the contract, what is the voidable, illegal, what is the contingent contract? 2019 में क्वेश्चन गलत था, related to the contingent contract in the Indian
ड्यू एलएलबी में ऐसा मुझे 3 साल से मैंने ऐसा नहीं देखा कि क्वेश्चन उन्होंने गलत ना दिया हो। 2019 में एक क्वेश्चन गलत था, 3-4 क्वेश्चन गलत थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 क्वेश्चन गलत थे। उसके बाद 2020 में क्वेश्चन गलत था। 2021 में 5 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन हुए जो क्लियरली हो सकते थे। बेसिक ऑफ एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एंड दी कॉन्ट्रैक्ट हैव दी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी द कॉन्ट्रैक्ट। एक मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो कि बहुत मेन क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आया था 2020 में, क्वेश्चन आया था 2020 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपेबल टू कम्स इन दी कॉन्ट्रैक्ट। उसमें से सब लोगों ने आर्टिफिशियल पर्सन को डाल दिया, उसमें माइनर ऑप्शन था, जैसे कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके चलेंगे। कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट की सिविल रॉन्ग के अंदर रेमेडी क्या होती है, इंजूरियस एंड डैमडम चाइनीज जो है, वाइकरस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, डेफामेशन। क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन, क्रिमिनल लॉ में 511 सेक्शन है, मतलब कि अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 में 511 सेक्शन है। पूरे पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते, एक क्वेश्चन लेकिन वो दे देते हैं। तो 511 सेक्शन पढ़ना इज इररेलेवेंट फॉर यू। क्या 500 की 11 के 11 सेक्शन आप नहीं पढ़ सकते? तो एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ भी गया तो उसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट और ये बेसिक टॉपिक जरूर पढ़ के चलेंगे कि जैसे प्रोसीजर और सब्सटेंटिव में क्या डिफरेंस है, मेंस रिया में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, जनरल एक्सेप्शन क्या होता है, थेफ्ट है, रॉबरी है, चीटिंग है, मिस अप्रोप्रिएशन है। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में सिर्फ सेक्शन का डिफरेंस पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर की तरफ केसेस नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है उसको भी नहीं पता ठीक से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल एंड होमोसाइड एंड द मर्डर। पनिशमेंट पढ़ लीजिए, पनिशमेंट पढ़ लीजिए आप, डिफरेंस पढ़ लीजिए आप, उससे ज्यादा मत पढ़िए। आई विल आंसर योर क्वेरी, प्लीज प्लीज होल्ड रुकिए। करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर मैंने जो देखा है अभी तक, जो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर में क्या होता है कि 2022 का पेपर 21 के पूछ रहे, सब लोग हैरान होते हैं कि सर ये तो 2015 का क्वेश्चन, 2015 का ये क्वेश्चन पूछ रहे करंट अफेयर का, या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या कुछ भी रेलिवेंट आपके लिए हो सकता है वो आप पढ़ के चलेंगे जो भी प्रीवियस हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अवार्ड्स है, सबमिट है, बिल्स एंड एक्ट है, इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है। और ये बेसिक सिलेबस है, जैसे उसमें करंट अफेयर, जीके भी आपका रहेगा, इंटरनेशनल लॉ, आईपीआर से ये लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन, ये लोग आप करके चलेंगे। इसके बाद जैसे कि रीजनिंग है, 10+10 तक के आप लेके चल सकते हैं, क्वांट के आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब बीएचयू का सिलेबस इससे थोड़ा सा कैसे अलग है, ये अबव सिलेबस आप करके चलेंगे, लेकिन साथ में क्या करके चलेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे कि उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम ज्यादा अच्छा पूछता है, थोड़ा सा क्वांट ज्यादा डिफिकल्ट पूछता है, तो आप क्वांट का पोर्शन थोड़ा सा अपना डिफिकल्ट लेके चलेंगे। एमएससीटी एलएलबी एंट्रेंस, इसमें क्या है, आप अबव मेजर पोर्शन लेकिन प्लस जैसे कि इंग्लिश पे थोड़ी कमांड रखेंगे, क्वांट और रीजनिंग को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपका बेसिक है। 2 आवर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। पीयू का सेम सिलेबस है, पीयू और डीयू का एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। और लेकिन बीएचयू में आपको एक चीज मिलती है कि बीएचयू में आपको हिंदी भी और इंग्लिश में दोनों में से आई थिंक एक चूज करना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपका डीयू में भी होता है, बीएचयू में होता है, पीयू में भी होता है, तो एक हम लोगों ने एक बेसिक डिफरेंस बनाया है, और ये अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे कि आपका मान लो डीयू में एडमिशन हो गया और बीएचयू में भी हो गया, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका सेंटर और आपका घर किस से पास है। दोनों फैकल्टी आर दी बेस्ट, जुडिशरी के लिए दोनों बेस्ट है। फी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सपोजर लेकिन थोड़ा डीयू का ज़्यादा है। आपको देखो कि दिल्ली जैसा स्टेट है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में अगर आपका हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपका बीएचयू में हो रहा है, तो आप कंपेयर अपने अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ दूर पड़ रहा है, आपको कैसे, आप किस किस बेसिस पे आप उसको रिलाय कर रहे हो। तो दोनों यूनिवर्सिटीज बेस्ट है, बीएचयू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज बेस्ट है, एलुमनाई दोनों की अच्छे अच्छे जगह से है।
प्लेसमेंट इज गुड फॉर दी, हाँ अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो ड्यू में मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, ड्यू का प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ड्यू में प्लेसमेंट सोसाइटी है, लेकिन प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपका बीएचयू यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंपली दिल्ली में ही रहना, और आप अगर आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, आप लिटिगेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लेसमेंट इज नॉट फॉर यू। अगर आप प्लेसमेंट अपना ध्यान चाहते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी को मत छोड़ना। मुंबई यूनिवर्सिटी को तब मत छोड़ना जब आपका टॉप कॉलेजेस में हो रहा हो, तब मत छोड़ना। अगर ड्यू मिलता है और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कोई नीचे की रैंक का है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि पीएचयू के काफी अच्छे अच्छे एलमनाई हुए हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए, आप लोग इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बारी मैं और नीचे आता हूँ, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने अपना क्वेश्चंस बेसिक बेसिक खत्म कर लिया, और मुझे पता है कि फिर एक वेबिनार जब हम लोग कंडक्ट करेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल ट्राइंग टू पुट ऑन द अननेसेसरी थिंग्स इन दी, तो आई वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन, आई लाइक द रूमर्स और आई लाइक द एवरीथिंग अबाउट टू मी एंड द अबाउट द कामना। ओके, चलो कमिंग टू दी योर पॉइंट्स, ठीक है। फॉर व्हाट्स योर क्वेश्चन एंड फॉर क्रिमिनल, मीनल प्लीज आप अपना माइक ऑन करके। देखो, अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, तो क्रिमिनल लॉयर को आपकी नॉलेज ही आपका डिपेंड करेगी कि आपकी नॉलेज कितनी, ठीक है। मान लो आपका एडमिशन फैकल्टी ऑफ लॉ में किसी भी कैटेगरी से है, किसी से भी आपका मान लो लास्ट कट ऑफ में होता है, तो इज इट डजंट मैटर फॉर यू इन द एंटायर लाइफ। दूसरी बात, आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है, आपकी नॉलेज कि आपने इंटर्नशिप स्टार्ट की, आपने कितनी इंटर्नशिप की है, किसके अंडर की, आपकी नॉलेज कितनी है। दूसरी बात, बेरेक्स आप मत खरीदिए, आप किसी भी सब्जेक्ट का बेरेक्स मत खरीदिए। ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है सारे बेरेक्स की, लेकिन आप बेरेक्स मत पढ़ना। अगर आप बेरेक्स पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए होगा। पहले आप बेसिक लॉ खत्म करो, फिर एडवांस में आप जाके कहीं ना कहीं बेरेक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट ड्यू की थर्ड पे रखो, सबसे मतलब आप सबसे पहले मैं बोलता हूँ, जैसे कि एनएलयू है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है और पीयू यूनिवर्सिटी है, फिर आप प्लेसमेंट के मामले में ड्यू का फिफ्थ ऑप्शन पे रख सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई आगे का क्वेश्चन? नो नो नो, देयर आर दी 511 सेक्शन इन दी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब 500 के 11 क्वेश्चन आप नहीं पढ़ सकते, उसके अंदर आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम देगा। और अब तो पैटर्न बहुत चेंज हो गया, मैं आपको बोलूँ, काफी लोग पूछते हैं कि मैं क्या सेल्फ प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर दी कैपेबल, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प या किसी ना किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है। जैसे कि रिट है, रिट आपको इंटरनेट पे बहुत, आपको 400 पेज का भी मिल सकता है, लेकिन आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो आपको कंसाइज सिलेबस की जरूरत पड़ती है कि कितना पढ़ना है, ठीक है, कितनी चीज पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन आता है। तो आप अगर अभी से ध्यान देते हुए चल रहे हैं 6 महीने 7 महीने, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम आई टू डिवोट टू स्टडी? मैं तो बोलूंगा देने वाले 5-5 घंटे देते हैं एक एक साल में, तब भी उनका नहीं होता। दूसरी बात, देने वालों ने एक एक साल दिया है तब भी नहीं हुआ, देने वालों ने 2 महीने दिए तब भी। डिपेंड अपॉन कि आप जो पढ़ रहे हो ठीक पढ़ रहे हो और आपको चीजें समझ। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अ लीगल राइट? आंसर लिखिए। आधे लोग जो बोल के गए हैं, मुझे लगता है उनको भी आंसर नहीं होता होगा। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अ लीगल राइट, गिव द रीजन। जो लीगल राइट बोल रहे हैं वो रीजन दीजिए मुझे, क्यों है लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों नहीं है, बताइए योगेश पांडे। आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करूं कि वन मोस्ट ऑफ दी पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कि राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बोला गया, लेकिन लीगल राइट। फर्स्ट एक बारी मेरी बात सुनिए, क्योंकि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लेकिन लीगल राइट इसलिए क्योंकि जो आपको, जैसे कि जो राइट, जो वोटिंग के अंदर, जैसे कि मैं हूं, मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ वोटिंग के अंदर, मैं अपना आईडी कार्ड बनाना चाहता हूँ, ये मेरा राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल, सिर्फ कि इनरोल एज द इलेक्टोरल
इलेक्टोरल में अपने आप को एनरोल कराना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन वोटिंग का राइट मुझे स्टैट्यूटरी राइट में दिया हुआ है, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में दिया हुआ है या अदर एक्ट में दिया हुआ है। देयर आर द बेसिक डिफरेंट। यूट्यूब खोल लो अभी साथ पे चैलेंज, देयर आर दी 90% पीपल हु सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हैं, लेकिन राइट टू वोट इज अ लीगल राइट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू एनरोल एज योर नेम इन द इलेक्टोरल is the constitutional right, vote legal right, there is a basic difference. अब मुझे there are the so many people who don't need, जो यही नहीं पता कि हर एक्ट में शॉर्ट टाइटल होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल क्या है, मुझे बताइए आपको अगर आपको पता है तो। These are the basic terms the people who don't know. If you starting your journey, you are capable of doing after some years. No, preamble is not the short title, not the short title यार, preamble short title नहीं है। शॉर्ट टाइटल आपका 300 के बाद आपको कुछ मिलेगा, 364 के आसपास आपका आर्टिकल है, वो चेक करिए आप। 393 इज दी शॉर्ट टाइटल या 394 आर्टिकल है। दिस दी, ये क्वेश्चन ही नहीं पता लोगों को, और रीजन मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट टाइटल इतनी बाद में क्यों है। मैं लविशा 2 मिनट और लूंगा, अगर देर आर दी सो मेनी पीपल फ्रॉम द क्विज, उन्हें कहिए आप वेट करिए। रीजन है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तब, जब आपको पता है जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे, जब हम आजाद हो रहे थे, तो कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेक्शन थे वो जल्दी जल्दी में लाने लगे, पहले लाने पड़े, जैसे कि शॉर्ट टाइटल वगैरह, इसलिए 393 में चले गए। और इसलिए जो बाकी के जो आर्टिकल है, जैसे कि यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी और आपके देयर आर दी अदर सिटीजनशिप के प्रोविजन, पीपल डोंट नो। क्योंकि क्या है कि so many people they are the present and doing only for the politics or the something, there are the so many group जो आपको 3 महीने बाद मिलेंगे, और अच्छी बात है अगर आप आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे भी, आपको पूरा गाइड करेंगे। there are the so many people जिनका इंटरेस्ट होगा। I have provided in 2020, there are the so many remarkable result from my side। 2020 में मैंने पेड पढ़ाया, इन फ्यूचर आई विल टीच दी एवरीवन इज दी पेड इज द रियलिटी, जिसको मैं एग्री करता हूँ, सब एग्री करते हैं। सो मेनी पीपल जो प्रोवाइड करते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भाग ही जा सकते हैं। लेकिन 2020 विच इज रिमार्केबल फॉर मी, कोविड वाली स्टार्टिंग थी, मैंने शुरू किया अपनी लाइफ में कि एक सोशल वेलफेयर के लिए। देन मैंने जब 2020 में कामना को स्टार्ट किया, तो मैंने कामना के अपना ज्यादा मूव फॉरवर्ड किया टुवर्ड्स दी स्ट्रे एनिमल। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आई होप एवरी, अब आप लोगों की मैं डाउट लेता हूँ, आप लोग अपना बताइए, ठीक है? थैंक यू सो मच। देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। दिल्ली जैसा स्टेट है, ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा मिल सकता है, डीयू में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अपना माइक ऑन करिए और अपना माइक सीधा सीधा बता सकते। देयर इज अ क्यूज आफ्टर दिस वेबिनार। मैं नेम से बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। टेंटेटिव, देखो मैं आपको क्लियर करूँ, सबसे पहले तो ऐश्वर्या प्रकाश की डीयू की 4-5 दिन पहले ये भी थर्ड कट ऑफ आई है। मैंने क्या बोला था कि डीयू का प्रोसेस बहुत स्लो है, तो टेंटेटिव डेट आप अगर आप लेके चलो तो जून जुलाई, जुलाई के बाद ही एग्जाम होने वाला है, अगस्त में होगा। अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही तो ये अक्टूबर में चले जाएगा, जैसे इस साल रहा है। तो 1 साल तो आपके पास पूरा पूरा है, 11-12 महीने। तो डीयू में मैंने देखा बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, प्लीज सेंड द, आई विल शेयर विद यू, आई विल शेयर। आई हैव टू रीड कॉन्सेप्ट। देखो मेरी बात सुनो, लक्ष्मीकांत इज दी वेरी बेस्ट बुक। आई, मैं किसी बुक को पब्लिश और रिकमेंड नहीं करता, ना मैं किसी का प्रमोशन करना, लेकिन बात है कि लक्ष्मीकांत इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत इज दी, जो आईएएस वाले बच्चे यूज करते हैं, लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको सब मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन लक्ष्मीकांत को रिवाइज करना, लक्ष्मीकांत आप सिर्फ 6 महीने में पढ़ पाएंगे और बहुत डिटेल में, और आप जब उसकी क्वेश्चन करेंगे विच इज रिलेटेड टू दी यूपीएससी एस्पिरेंट और वो है, तो आप एक बेसिक बुक भी रख सकते हैं जो डीएलएलबी के लिए आती हो, या आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा सही नॉलेज, वही आपको पास कराएगी। लेकिन मैं, मुझे सबसे ज्यादा डर ये लगता है, मैंने भी पढ़ा है 2021 में, ऐसे क्रैश कर दिया विच इज द पेड कोर्स। उसमें क्या हुआ,
ऐसे कितने बच्चे थे जिन्हों का 2-2 मार्क्स से रहे। तो आप ऐसे वाला मत करना कि आप 2 मार्क्स से रह रहे हो, कि पूरी साल की मेहनत, तो आप फोकस करना कि आप जो पढ़ रहे हो, जो सिलेबस कर रहे हो, बहुत ठीक से करो। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द तुषार, सर व्हिच ईयर शुड आई प्रिपेयर? ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मेरी बात तो मानना ये है कि जैसे कि रीजनिंग है, करंट अफेयर है, जीके है, ये तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। ये तो कभी खत्म नहीं होनी। जीके तो बहुत बड़ा है और जीके कहीं से भी पूछ लेते हैं वो ड्यू एलएलबी में। लेकिन कुछ बेसिक टॉपिक्स है जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, रॉक, फर्स्ट कौन है, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, ये वाली चीजें सारी होती है। वो मैं ये भी आपको कभी किसी दिन ग्रुप में मैं भेजूंगा। सर इन दी बीएचयू टीचर दी, देखो ऐसा है बीएचयू का जो मुझे जितना पता है, मैं बीएचयू में नहीं पढ़ा, लेकिन बीएचयू की जो थोड़ी सी चीज है कि जो थोड़ा सा है बीएचयू के अंदर कि वहाँ थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज की ज्यादा प्रेफरेंस है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये हिंदी बोलना इज नॉट अ, थोड़ी ना हिंदी बोल, मैं भी तो हिंदी बोल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना कि हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, तुम्हारे को समझ आना चाहिए। इफ मैं बोलूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन राइट इन दीज आर दी फंडामेंटल राइट, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। ओके नेक्स्ट, व्हाट दी, आई विल नॉट रिकमेंड एनी ऑनलाइन, क्योंकि देखो देयर आर दी सो मेनी वेबसाइट, देयर आर दी सो मेनी जहाँ पर गलतियां हैं, इवन दी देयर आर दी सम बुक्स व्हिच आर दी मिस्टेक। तो रिकमेंड करना सोर्सेज को करना इस डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि एक सोर्स रह नहीं गया। बीएच डीयू का पेपर बहुत बदल चुका है, पहले पैटर्न भी चेंज हो चुका है, डिफिकल्टी लेवल भी आई है, कट ऑफ भी पिछली बार से 12-13 मार्क्स ऊपर गई है। देखो अगर आप प्योरली यू आर गोइंग फॉर दी जुडिशरी, यू शुड चूज दी ऑप्शन फॉर एज दी बीएच। मेरे मैं जितना बोलता हूँ। सर हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, आई सक इन दी, अरे ऐसे मत देखो करंट अफेयर यू कैन फॉलो एनी ऐप, एनी वेबसाइट, एनी न्यूज़पेपर फॉर द करंट अफेयर। आई एम इन द फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, which is the law center, which is the litigation, or which is the better litigation or judicial or any private firm? हाँ, पैसा सब में है, हिंदी बस। if you are the capable to, देखो लिटिगेशन इज लाइक कि यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, मतलब लिटिगेशन इज द लाइक द ओशन एंड द प्राइवेट फर्म लाइक इज द रिवर। ओशन बहुत बड़ा है, लिटिगेशन जो करता है उसको बहुत नॉलेज हो जाती है, एक्सपीरियंस होता है, प्रोसीजर का पता लगता है कोर्ट का। लेकिन फॉर्म में आपकी 9 to 5 जॉब, लिटिगेशन में आपकी एक केस ले लिया, अगर एक केस ही बहुत बड़ा ले लिया नाम हो जाएगा। दिस सेंटर आई मीन आर एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश इन ओनली। आई थिंक पंजाब का हिंदी में भी होता है। Universal adult franchise is mentioned in the constitution. How to separate the right to vote, the constitution. I मेरे को ये पर्सनली भेजो क्वेश्चन, अभी ये वाले थोड़े बाकी लोगों को भी समझ आए, पर्सनली भेज दो। लिटिगेशन इज स्पेसिफिक लॉ, नो नो, पहले आपको देखो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारे को बताऊं, ज्यादा देखो आप तुम अगर क्रिमिनल लॉ की सोच के चल रहे हो, अब क्रिमिनल लॉ की तो तुम सोच के चल रहे हो, लेकिन क्रिमिनल लॉ के लिए आपको केसेस देगा कौन? अब न्यूली फ्रेशली ग्रेजुएट है, कोई मर्डर ले केस ला के देगा? आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? आपको प्राइवेट पकड़ने पड़ेंगे छोटे छोटे के। सिर्फ धीरे धीरे आप अपने फील्ड में बना सकते हैं। हाँ, ड्यू के अंदर सारे ऑप्शन है, क्योंकि ड्यू का एक्सपोजर अपना अच्छा है। ड्यू के देखो कॉलेज इज डजंट मैटर। अब मैं रियलिटी पे आता हूँ, कॉलेज इज डजंट मैटर। कॉलेज तो देखो सिर्फ आपको डिग्री देता है, लेकिन आपकी रियल नॉलेज आपकी ही होती है कि आपने खुद कैसे पढ़ा, कैसे प्रैक्टिस करा। तो मैं आई एम डन विथ टुडे माय सेशन। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस, आई लाइक, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी पर्सनली, आई आस्क मी पर्सनली। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस the interns of the Kamna. The quiz will started after the, please Lavisha short the interns session and start the quiz. एक intern को आप opportunity दे सकते हैं। इशिता please conclude the within the 5 minutes. Then we have the Thank quiz. you, Aman sir, for enlightening us with these precious pearls of wisdom and knowledge. Let's take a moment and wrap the webinar points into a nutshell. We discuss about the differentiation between the 3-year law course and the 5-year law course. Furthermore, you were enlightened about the different law colleges and their eligibility criteria, syllabus, and the entrance exam pattern. We also discuss about the various paths you open up to when you choose law as your career option. Wondering if you could get a direct admission as well? We got it covered by listing various leading law colleges which provide direct admission to 3-year law course.
Once again, I would like to send my hearty gratitude to Sir for providing us with so much information and clearing the doubts in this amazing session. Thank you. There and seeing the audience out there, I think there's something or the other that you must have learned from this webinar. And if you are gaining just a single thing from this webinar, then this webinar is useful to us. You no one to blame us for that matter of state of or that matter of fact that we are enriching with you. So with that being said, I like to call Ms. Haya for the intern speech and then moving ahead with the closing remarks. Greetings everyone. I'm Haya Shah and I'm currently pursuing law career via 5-year integrated course. I have given my CLAT and on the basis of my CLAT score, I got placed into GGSIT University, that is Guru Gobind Singh Indraprasth University, affiliated college, and I got a very great learning experience. Sure. And now okay, no worries over there. With that being said, I'll love to close this webinar session with you all. And now we'll be moving on to the most awaited quiz session that you all were there. So with that being said, we have Justin with us. Yes. So he'll be introducing you with the quiz and we'll be then sharing the screen. And so everyone be ready, buckle up your mics, like get hold of your screen and give out answers very clearly. So may I start? Ms. Lavisha, am I audible? Okay, thank you. So greetings everyone, and I welcome you all to Vedic 1.0, the legal quiz. It gives Kamna, Voice of Justice, an immense pleasure to welcome you at the riveting stimulation of Vedic Quiz 1.0, which is a legal quiz competition being organized for legal aspirants and legal students who are still indecisive regarding their preparation for a flourishing law career. The event is being held to give the law aspirants a hint regarding the type of questions they will be dealing during the law entrance preparations. You will get a chance to understand and absorb a lot of knowledge and have deep insight regarding the importance and important questions that we will be encountering while preparing. So let's get to the quiz eligibility and rules. Number one, the quiz contains questions from legal background as well as current affairs, general knowledge, and some law-based questions. Eligibility is like everyone around here can raise their hands. That's the first, like you need to maintain a basic decorum. Maintain the decorum and don't answer without raising hands, as this would lead to direct disqualification from the event. The most spontaneous person to raise hand will be given the chance of speaking the answer only by and will be only allowed to answer by the moderator. So wait for your name to be called before providing the answer. And please refrain from writing down the answers in the chat, as this will also lead to disqualification. And the rules are very much simple. Don't behave inappropriately in the chat. And also, as a participant, maintain the decorum of not unmuting without being called by the moderator. And don't share the screen until and unless asked for, and misbehaving can also lead to disqualification and along with strict actions against you. So that's all as rules. So let's get ahead. The legal team can take over. Thanks, Justin. So, ready up, guys? Here we are presented before with the first question of the quiz. Which one of the following days is being observed as National Consumers Day in India? 24th December, 25th December, 10th December, or 31st December? It's B, 25 December. Do we have any other answers? Ma'am, 24th December. 24th December. Yes, the correct answer is A, 24th December. Moving on to the next question. Who presides over the joint session of Parliament? Speaker.
Shefali, Please raise your hand first and answer. Please raise your Shefali raise. can answer. Priya Trivedi actually is keeping her hand raised every time. So, like, she can lower down the hand, and when the question is completed, can ask the. Next question is ordinance is promulgated by governor, president, parliament, or both A and B? Tushar Grover can answer this question. Ma'am, D, both A and B. Yes, the answer is correct. Both A and B. Next question, a right available against word at large is a right in personam, a right in rem, right in pleno, right in suit. Mika can answer. Okay, Rohit Goswami can answer. B, right in rem. Correct answer. Here the next question is writ of habeas corpus is a constitutional remedy, legislative remedy, executive remedy, or quasi-judicial remedy. Mika and Mika can answer this question. Okay, Preeti Gupta can answer now. It's a constitutional remedy. Yes, the answer is correct. Okay, wait. Wait, please इसको ऊपर करो. द एक ऊपर करिए, क्वेश्चन लगाइए, वापस क्वेश्चन को लेके आइए. हाँ. रीजन इज कि द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ साथ एक जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें देखेंगे कि जो रिट को फाइल करने के लिए भी आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है आपके, वैसे आर्टिकल 12 से आर्टिकल आपको 35 तक मिल जाएंगी, तो जो आर्टिकल 32 है बेसिक, वो कवर करता है कि आपको रिट फाइल करना भी आपका एक खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. तो ये आप इसकी अपनी नॉलेज में आप लोग ऐड करेंगे आगे फर्दर क्वेश्चन. The next question is punishment for an attempt to commit robbery may extend up to 5, 7, 8 or 9 years. Tushar Grover can answer the question. Tushar Grover. 7 years. 7 years. Yes, this is correct. Next question. Which section of the IPC deals with dishonest misappropriation of property? Section 402, 401, 403 or 404? Shivani Singh can answer the question. 402. Sorry, it is wrong. Preeti Gupta. Preeti Gupta can answer the question. D. D, 404. D. No, it's wrong. Okay. Jasi Rakabunia can answer the question. Section 403. Yes, that's correct. 403 is the answer. Next question. Contract of indemnity is defined under which of these sections? 127, 126, 125 or 124? Shivani Singh can answer the question. Preeti Gupta can answer the question. D. 104. Oh, sorry. 124. Yeah, that's correct answer. Next question. The burden of proof in a strict liability case is a preponderance of evidence, clear and convincing proof, negligence, or duty and a breach of duty. Preeti Gupta can answer the question. D. Duty and breach of duty. No, that's incorrect. Priya Trivedi can answer the question.
Okay, Shivani Singh can answer the question. So clear and convincing proof. No, it's wrong. Rohit Goswami can answer the question. No, it's incorrect. The correct answer is P. Preponderance of evidence. Right. So yeah. Next, we have compensation for loss or damage caused by breach of contract is covered under which section of the Indian Contract Act? Section 74, 73, 75, or Section 83? Preeti Gupta can answer the question. 73. Yeah, that's correct. Next, legal aid for an accused is a legal right, a directive principle of state policy, a fundamental right, or discretion of the state. Rohit Goswami can answer the question. B. DPSP. No, that's incorrect. Jhansi Agha Punia. Discretion and of state. No, that's incorrect. Preeti Gupta can answer the question. Fundamental rights. Yeah, that's Which is correct. given under the Article 21, if I am not wrong. Article 1 या Article 22 में मिलेगा आपको उसका. Yeah, That's it's right. fundamental right. Next, identify the main principles on which the parliamentary system operates. Responsibility of executive to legislature, supremacy of democracy, rule of law, or supremacy to the constitution. Shivani Singh can answer the question. Sir, A. Responsibility of executive to legislature. Yes, that's correct. May we move on to next slide? Now, which of the following constitution is a unitary constitution? USA, British, Indian, or Australian? Yeah, Shivani Singh can answer the question. Rohit Goswami Sir, now can answer the question. USA. British. Yeah, Rohit Goswami is answering correct. British is the answer. A judge of the Supreme Court can be impeached from office only on the ground of gross inefficiency, delivering wrong judgment, senility, or proven misbehavior incapacity. Rohit Goswami can answer the question. D. Proven misbehavior and incapacity. Yeah, that's correct. Next, what are the exception to Section 376, Clause 1 of IPC? Being a police officer, being a public servant, third, being a member of armed forces, fourth, commits rapes repeatedly on the same woman. Option A, 1 is correct, only 2 and 3 are correct, all of them are correct, or D, only fourth one is correct. Preeti Gupta can answer the question. D. Sorry. D. 4. Only 4 is correct. No. Next, sorry, C. All of the are correct. Yeah, all of them are correct. Third option. Yes. Section 420 of the ICC talks about fraud, cheating, misappropriation, or mischief. Rohit Goswami can answer the question. Cheating. Yeah, that's correct.
Now, A intentionally given Z a sword cut sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature, as a consequence of which Z dies. Now, A is guilty of murder, A is guilty of culpable homicide, A is not guilty as this comes under exception to culpable homicide, or none of the above. Rohit Goswami can answer the question. A is guilty of murder. Yeah, that's correct. Next question. Who was the first woman judge appointed to the Supreme Court of India? Justice Srimati Lilikutti Thomas, Justice Srimati M. Fatima Bibi, Cornelia Sorabji, or Justice Srimati Rashmi Chakrabarti? Yeah, Rohit Goswami can answer the question. B. Fatima Bibi. That's correct. Last question of the quiz. Which of the following is not a Himalayan river? Indus, Ganga, Brahmaputra, or Pennar? Priya Trivedi can answer the question. Rohit Goswami can answer the question. D. Pennar. Correct answer. Yeah, done with questions. There is a tie or something. Sure, sir. Give me 2 to 3 minutes. I'll present you with the results. Give me 2 minutes. That was quite an interactive session and it was brainstorming as well. I hope you must have got a fresh bunch of knowledge from this quiz, and the motive of this quiz was to provide you with an idea of the questions you'll tackle for the law entrance exam. With that, now I take a few minutes to express my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our honorable speaker, Sir Aman Jwala, the founder of Kamna Voice of Justice, to grace this event and transfer the know-how about the law entrance exams. Lastly, I would like to thank all the members of Kamna, as you all contributed a crucial role in making this webinar and quiz happen so smoothly. Thank you.